Said a lot of the younger generation emulates, and I give him a lot of credit for this. क्यों? I think he was one of the first few जिन्होंने and of this generation, I don't like comparing. Maybe I've just not extensively covered. I'm talking about the current times because modern cricketing landscape बड़ा change हुआ 2008-9 के बाद. Because a lot more T20 cricket came in, a lot more cricket started happening. तो मैं सिर्फ modern landscape की बात करता हूँ जिसमें cricket became a very attractive, lucrative, glamorous thing and all of that. और जिसमें you needed that extra level of fitness क्योंकि आप अगर सारे formats खेल रहे हो and you're on the road all the time or you're endorsing and package. And that's what I'm saying. Maybe there were a lot of people who played like this earlier. So I'm not saying कि आज तक नहीं हुआ. लेकिन मैंने जो देखा अपने टाइम में विराट कोहली was a cricketer on the field and he stayed an athlete of it. And what's about his mindset? कैसे सोचते हैं? पता नहीं यार, बड़ा मन है एक दिन उसके दिमाग के अंदर जाने का. And I've just been very lucky to have a lot of interviews. अलग सोचते हैं. That is obviously clear. I think from a very young age, that little extra, थोड़े एकदम दिल्ली वाले होते हैं ना कि अबे हो जाएगा. And I think he just had this innate confidence. Some people want to do the tough things. Some people always want to do the tough things. He's one of those. He's always wanted to do it. And he showed that. He's shown that time and again. सबसे पहले, how will the world believe in you if you don't believe in yourself? I think he believes in himself even if it comes out कि बहुत overconfidence है. Doesn't matter. He's proved it time and again कि overconfidence नहीं है, जो impossible लग रहा है, he'll make that possible. So that's something, a little bit of it could be natural, could be conditioning at a young age, could be a lot of reasons that we may not be aware of जिन्होंने shape किया है उनकी personality को, उनकी life को. And he didn't change any of that in international cricket. I think उनको कभी ये नहीं लगा कि यहाँ पे आके अब कुछ अलग करना है, कि लोग मुझे जज करेंगे. Again, unapologetic. जो हूँ मैं हूँ. And जो हूँ मैं हूँ, और वही करते करते इतना कर लिया that everyone just started to believe कि भाई है, कुछ भी कर सकता है. यही है, कुछ भी कर सकता है. Like there is, कुछ प्लेयर्स मैच कहीं से भी जिता सकते हैं. Like कहीं से भी. That performance at MCG, that 82, which was actually great because Virat in the interview said कि when मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, विकेटें गिर रही हैं. And Hardik Pandya walked into bat when India had lost 4, I think. And मैं रवि भाई के साथ कमेंट्री कर रहा था. And this is what he said, like यार मैच कैसे बिल्ड करें, जनता तो टीवी बंद कर देगी, दिल टूट गए सबके, मैच तो लग रहा था हाथ से निकल गया यार, जीतने के चांसेस बहुत कम हो गए थे. एंड दिस लाइक रवि भाई, पर्सनैलिटी के मामले में ऑनेस्टली इस पोजीशन में जो 2 बंदे आप चाहते हो वो यही हैं, राइट? 2 अनअपोलोजेटिक बंदे जिनको लगता है कि इम्पॉसिबल कुछ है नहीं, अब एक छोड़ तेरा भाई करेगा. एंड दिस व्हाट विराट सेड, आई वाज जस्ट ज़ैप्ड एंड हार्दिक केम एंड सेड हो जाएगा हो जाएगा करते. सो ही जस्ट सेड अच्छा हाँ हो जाएगा. अमर प्रेम लग गए एंड निकाल दिया मैच. बट दोस 2 shots that Virat played, so yeah, just that innate confidence कि मैं करूँगा, कोई कुछ भी बोल रहे, and just wanting to do कि ये नहीं हो सकता, नहीं यही हो सकता, मैं करता हूँ. कई होते हैं ना कि नहीं मैं करता हूँ ना करे, और some people are very good at what they do but they could just be happy हाँ ये हो जाएगा. There's some are just, I think a little bit of it is, I don't want to use the word gift and talent and all of that because ये undermine कर देता है आपकी achievements को. इसके लिए रोज़ काम करना पड़ता है. And I mean now, and obviously he's into a lot of, I think, meditation and mind space. As we all know, he's gone a lot towards spirituality. So wherever you get answers, wherever you get that peace and focus. I feel जो एक बेस्ट क्वालिटी है जो हर कोई अग्री करेगा, दिस लाइक बहुत आउट इन द नो है, सबको पता है कि कभी ऐसा विराट कोहली को देख के स्क्रीन पे लगता नहीं कि कुछ अफेक्ट कर रहा है. लाइक कितना भी प्रेशर हो, हज़ारों लोग हों, कोई बू कर रहा है, कोई तारीफ़ कर रहा है, सामने वाला गाली दे रहा है, कोई सीनियर प्लेयर है, छोटा प्लेयर है, यंग है, मेरा फॉर्म अच्छा है, गंदा, वो एक ऐसे एक निंजा वॉरियर जैसे जोन में जाते हैं और वो वॉरियर जैसे ही जोन में बाहर आते हैं. लाइक यू नो, जैसे आपने बोला तपस्या, वो वैसे ही है कि मैं तपस्या करके आया हूँ
मैं मेरे ऑरा में जाऊँगा, मैं मेरे ऑरा में बाहर आऊँगा, एंड दैट इज़ कमेंडेबल, क्योंकि अच्छा आदमी टूट जाता है कहीं ना कहीं। मैं कभी कभी कमेंट्री बोल देता हूँ, ह्यूमन जनरेटर है, तारे लगा दो बिजली आ जाएगी। Because he just exudes that energy. He said this in one interview, मेरे को सिर्फ लाइफ में एक ही चीज़ चाहिए कि मैं जब वापस आऊँ, रिजल्ट नहीं, इट्स नॉट द रिजल्ट, आई जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ कि जब मैं शीशे में देखूँ, आई शुड जस्ट नो कि मैं जो था सब छोंक के आ गया। आई गेव इट एवरी सिंगल आउंस, एवरी कण कण जो है ना वो मैच में लगा दिया, और कुछ नहीं हो सकता था। एंड दैट्स ऑल दैट आई वांट टू डू आफ्टर एवरी मैच। एंड इज लाइक दैट इन रियलिटी ऑल्सो? वैसे मतलब रियल लाइफ ऑफ मैच भी ऐसे एग्रेसिव और यही वो यार पंटर? ऑफ मैच तो ही इज अ proper fun loving. He's obviously changed a lot with time, as everyone should. Yeah. You know, सब जब बड़े हो रहे हैं हम सब अलग होते हैं. You must have changed so much, but he is still that fun loving. He's इतना बॉलीवुड कूट के अंदर भरा है. अभी रिसेंटली मैं और वजूबा फील्ड पे थे, सो उन्होंने सफ़ेद पैंट डाली हुई थी, जूते डाले हुए थे, तो उधर से ना राट ने अपनी फील्डिंग कैचिंग करा, तो इधर से देख के वो जो डांस है ता थैया हो, तो वो वाला एग्जैक्ट स्टेप्स बंदे ने एग्जैक्ट स्टेप्स कर दिए देख के वजुआ को, क्योंकि कह रहे थे जीतू पाजी आ गए। तो वहाँ वो करने लग गए, एंड वो बैकफुट डाल दिया। वजुआ कह रहे यार ये क्या कर रहे हैं। फिर बीच में ब्रेक में ही केम लग नहीं रहे जितेंद्र, हाँ जितेंद्र लग रहा है ता थैया हो। बॉलीवुड कूट के भरा है। और वो अच्छा वो 80s 90s अर्ली 2000s वाला जिसे हम बोलते हैं ना, जो जिनको देख के बड़ा अलग बॉलीवुड था वो हमारा। एक अलग बॉलीवुड था दैट पीपल माइट टुडे, a lot of them might call a lot of it cringe boss, but it was amazing cringe. We loved it. And वो सारा बड़ा हुआ है, सारे गाने पता है, and fun loving, always ready to crack a joke. He's a boy, a hardcore boy. And on the field, he's something. Off the field, it's all these fun loving elements and all that, but very punctual. हम पहले बात करते हैं, एक टाइम होता था सबको लगता था कि शूट्स आराम से शुरू करो यार, सुबह आराम से उठेंगे, दोपहर को करेंगे शूट एंड ऑल दैट। बट अब जब से शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, तो सुबह 7-8 बजे ही लाइक्स टू डू हिज शूट, स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, इज़ वेरी पंक्चुअल, ही इज़ फैंटास्टिक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, meticulous. You can see the planning. Even when he's doing an ad shoot or he's doing an interview and all of that, you see that he is committed, he's there. So vibe है। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, इस चैनल को इसी टाइम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते हो उतनी हमें हेल्प होती है कि हम और बेहतर और बड़े गेस्ट लेके आएँ आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू डिलीवर कर पाएँ। नंबर 2, मुझे अभी कमेंट्स में बताओ कि कौन से ऐसे और गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ताकि हम उन कमेंट्स को पढ़ के वैसे गेस्ट, वैसे क्वेश्चंस पूछें, वैसे टाइप के टॉपिक्स लेके आएँ आपके लिए। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उसे इस एपिसोड से कुछ नया सीखने को या जानने को मिले, क्योंकि एक कॉन्वर्जेसन इज़ इनफ टू एक्चुअली नो समथिंग रियली इंसाइटफुल जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सकता है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।